Okay, this is the first quiz. We are having the first quiz of history, and this is a speed quiz. You only need to mark true or false. So I don't think it should take more than 5 minutes. Rafi have done the quiz in 2 minutes. Okay, so you have 3 more minutes, and after that we are going to start with the class of Islamia. Yes, Mubashir. मिस मैंने भी सबमिट करवा दिया. Wow, Mubashir, that is excellent. Okay, I think Alicia has submitted the quiz as well. Yes, Alicia. Miss, I have submitted the quiz and I got full marks. Wow, Alicia, that is excellent. Okay, did I make the quiz too easy? Yes. All of you are getting full marks. Okay, I'll keep that in mind. Yes, Abhiya, have you submitted it? Just give me a thumbs up if you have submitted the quiz. Okay. I have submitted. I got 17 marks because my one question was incorrect. Okay. Just give me a thumbs up if you have submitted the quiz. No need to tell me. Yes, I have submitted the quiz and I also got. Okay, Sinan. Sinan, you have submitted your quiz. How many marks you got? टीचर मुझे मुझे पता ही नहीं चले, मेरे पास आए ही नहीं. Why? Okay, I will show you. Yes, Amsal. Miss, I got 13 marks. 13. 14. I don't think it's possible to get 13 marks. Okay, let's see. Okay, just make sure that your marks does not mean anything right now. सही है? सनान, अगर my marks अच्छे नहीं है, वैसे तो मुझे पता है मैं ऐसा होता नहीं, अच्छे ना है, but still 19 out of 19, Rafi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, ये एक जो है वो 1 मार्क्स का रह गया, मुझसे गलती से वेट. Okay, let's see. Rafi got 20 out of 20, and Amsal got 14. Mubashir got 18. Shahraza 10. Mohammed Sanan 18. Sanan, you have done one question wrong. I'll let you know what your wrong answer is. Okay. Alisha got 20. Abiha got 18. Usman got 12. Fatma 20. Abdullah Farhan 12. Saad 14. मिस Aryan. मगर मेरे उस पे ये 19 आउट ऑफ 19 लिखा है. Exactly, क्योंकि मैंने अब दोबारा से चेक करो, आप 20 out of 20 दिखाएंगे. ओके, आई शारा से बेटा आप इवन अगर मिस नो. दोबारा चेक करो, रिफ्रेश करके चेक करो. मिस मेरा अभी तक नहीं हुआ. रिफ्रेश करो. ओके मिस. ओके, सही है. क्लास आप लोगों का टाइम जो है यस मिस हो गया. एग्जैक्टली, आई नो दैट. सही है, आप लोगों का टाइम जो है वो अप हो गया. मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 5 तक काउंट कर रही हूँ. जिन बच्चों ने सबमिट नहीं कराया है वो 5 की काउंटिंग के अंदर सबमिट कराएं. सही है. 1 2 3 4 5. सही है. अब आप लोगों ने नहीं करा तो आप लोग नहीं कराएंगे. साइमा मसूद अभी भी आई है. अनाया. ओके अनाया बेटा, आपको मैं क्विज की लिंक सेंड कर रही हूँ. आपको सिर्फ 5 मिनट से क्विज करने के लिए. 5 मिनट्स के बाद अभी कोई सबमिट नहीं करा सकती, तो मेक श्योर आप 5 मिनट्स के अंदर करा दीजिए. ओके. और सनान, तुम्हारी सिर्फ एक क्वेश्चन गलत है. कोई बात नहीं. नेक्स्ट टाइम आई नो यू विल गेट 20 मार्क्स. सही है. सो नो नीड टू बी वरीड अबाउट इट. ओके. Okay, so hello everyone. Today is the class of Islamiyat, and do you guys remember what we were studying in the last class? We talked about malice and jealousy. Okay, so kindly take out your books, take out your chapter, take out your copies, take out your box, bring everything with you so that you won't have to go in the middle of the class. Okay, bring everything. Hurry up.
Okay, the chapter is on page number 37. ये सब कॉपी वर्क करवाएंगी आज? Exactly. We are going to start with the copy work and we are going to finish the chapter first. Okay. There are only 2 paragraphs left in a chapter. The chapter itself is very small. Okay. So what we are going to do is that we are going to be finishing the chapter and then we are going to start with the copy work. Okay. And as I've already told you that we are going to be having a double class today as your ICT class was cancelled. So I think we have some more time. Okay. After our class. So we will be taking double classes so that you can complete your Islamic work as well. Yes, Mubashir. How can I help you? Yes, हम आप malice and jealousy पढ़ाएंगी? Exactly. We are going to be studying malice and jealousy. We have already studied half the chapter itself. सही है? हम लोग half chapter already पढ़ चुके हैं. So this only 2 paragraphs are left, and then after that we are going to be complete with our topic. You can say that. Yes, Abiha, your title page looks very nice. Okay, good job. अम्मा 2 दे दे. Okay, Rafi, kindly take out your copies. Yes, Ali, we are talking about Islamiyat copy. तो ये आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन सी कॉपी, तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस्लामियत की कॉपी है. Okay, let's see, अनाया ने सबमिट करा दिया है, नहीं कराया है, मुझे भी करा दिया है और युस्रा ने करा दिया है. ओके, बाकी लोग अब एक्सेप्ट. नहीं सर, मैंने सिलेबस लिखवाया है इस्लामियत का. नहीं बेटा, नहीं लिखवाया है. Okay. Does anyone have any problem regarding the quiz? Okay, I'm telling you the right answers right now. सही है? तो अगर किसी को कोई इशू है, किसी को समझ में नहीं आया, तो वो मुझे बता सकता है. Okay, I'm explaining all the points over here. So just kindly be focused. Like आप लोग बाद में अगर आप लोगों को कुछ मुश्किल लगा हो या अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आया तो वो अभी क्लियर हो जाए पॉइंट. सही है? The people of China were proud of the land they had. कह रहे जो people of China थे वो लोग जो बहुत ज़्यादा proud थे, उनको जो भी land मिला हुआ था उसका. सही है? So that is true. वाई, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जब चाइना के लोग जो वो अलग जा रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि इवन दो उनके पास जो भी लैंड था, उनके पास जो भी रिसोर्सेज थी, वो क्या कहते थे, हमेशा वो प्राउड होते थे कि उनके पास जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है, वर्ल्ड का बेस्ट चीज़ है. नंबर 2, इन चाइनीज एम्पायर किंग्स आर एट द टॉप. कह रहे चाइनीज एम्पायर के अंदर किंग्स जो है वो टॉप पे होते हैं. सही है? बट दैट इज फॉल्स. वाई? क्योंकि चाइनीज के टॉप पे कौन होते हैं? हमेशा एम्परर्स होते हैं. नंबर 3, द एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ चाइना इज वेरी हार्ड. कह रहे जो एग्जामिनेशन सिस्टम है ना चाइना का वो बहुत ज़्यादा हार्ड है. ओके, दिस इज ट्रू. सही है? नंबर 4, सिविल सर्वेंट्स आर पीपल हु वर्क इन इंडस्ट्रीज. क्या है? सिविल सर्वेंट्स वो लोग हैं जो कि इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते हैं, जबकि ये क्या है, फॉल्स है. मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सिविल सर्वेंट्स कौन होते हैं. दिस इज द पीपल हु वर्क फॉर द पीपल. सही है? कि जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, जो लोग पीपल्स के लिए काम करते हैं, दे आर नोन एज सिविल सर्वेंट्स. सही है? Li Yuan was a brother of Taizong. कह रहे Li Yuan जो है ताइजोंग के ब्रदर थे. सही है? That is false. Why? Because he was the father of Taizong. वो कौन थे? ताइजोंग के फादर थे Li Yuan. Taizong brought peace in his empire. क्या ताइजोंग जो है वो तंग डायनेस्टी के अंदर जो वो पीस लेके आया था. That is true. Okay. Wu Zetian was a bad influence on Taizong. कह रहे Wu Zetian जो ताइजोंग के ऊपर बुरा इन्फ्लुएंस रखती थी. सही है? That is false. Why? क्योंकि Wu Zetian तो ताइजोंग के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट रखती है. जब ताइजोंग बीमार हो गए थे तो Wu Zetian ने क्या करा था, चाइना की फर्स्ट एम्प्रेस बनी थी और पूरे तंग डायनेस्टी को Wu Zetian ने संभाला था. सही है? So obviously she was a good influence. ओके, द पीपल ऑफ सुंग डायनेस्टी वो वेरी गुड वॉरियर्स. कह रहे जो सुंग डायनेस्टी के लोग हैं वो लोग जो है बहुत ज़्यादा अच्छे वॉरियर्स हैं. इट मीन्स कि वो लोग बैटल्स में लड़ने में बहुत अच्छे थे. सही है? एंड दैट इज फॉल्स. वाई? क्योंकि सुंग डायनेस्टी के लोगों को तो लड़ने का शौक ही नहीं था. वो लोग क्या करते थे, वो लोग अपने सारे एनिमीज को, उनकी जो भी मतलब जिनसे भी उनकी बैटल्स होती थी, क्या करते थे, उनसे लड़ने के बजाय उनको पैसे दिया करते थे और बात पैसों से हल करने की कोशिश करते थे. तो ये हुइजोंग वाज द लीडर ऑफ सुंग डायनेस्टी. दैट इज ट्रू. सुंग डायनेस्टी के लीडर कौन थे? हुइजोंग ही थे. और सुंग डायनेस्टी द फर्स्ट टू इन्वेंट पेपर मनी. कह रहे कि जो फर्स्ट थे जिन्होंने जो पेपर मनी इन्वेंट करी थी वो सुंग डायनेस्टी थे और ये ट्रू है. सही है? सो यहाँ पे जब हमारा क्विज जब एंड हो गया है. सही है? जिसने सबमिट करा दिया उसे करा दिया, जिसने नहीं करा उसे नहीं करा है. ओके, नाउ ओपन योर इस्लामियत बुक्स. ओपन पेज नंबर 37. हरी अप. ये सामने. हाउ कैन आई हेल्प यू? मिस मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तब समझ आ गया. आ गया ना? सही है.
अच्छी बात है वो हमेशा क्विज के एंड में आप लोगों को कुछ समझाते जरूर हो। सही है। सो टेक आउट पेज नंबर 37, हरी आप। Okay, class. In the last class, what we talked about in this chapter is that we talked about that jealousy was a negative emotion. Okay, then we just can you give me 2 seconds, please? Okay, so what did we study in the last class? We talked about that jealousy is a negative emotion. Okay, we talked about that what happens in jealousy, that a person burns with himself. एक person क्या होता है अंदर ही अंदर क्या करता रहता है, burning वाली feeling आती रहती है। सही है। हम लोग ने थोड़ी सी, this is just a recap. Okay, I'm giving you a quick recap. उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो jealous person feel होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हासद कहते हैं। सही है। और जिससे वो jealousy feel कर रहा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, महसूद कहते हैं। सही है। उसके बाद हमने क्या कहा था, उसका हमने देखा था कि जो जेलस पर्सन होता है ना, वो दूसरे इंसान के लिए जिससे जेलसी फील कर रहा होता है उसको कुछ भी करने के तैयार होता है। सही है। ही कैन गिव हिम मेंटल हार्म, ही कैन गिव हिम बॉडली हार्म एज वेल। सही है। यानी कि वो उसके मेंटल हार्म तो देगा उसको, मतलब कि बोल बोल के, या उसको किसी न किसी किस्म की उसको इनसिक्योरिटीज फील करवाएगा। सही है, बोलने के बाद। बट स्टिल वो क्या कर सकता है, उसको किसी भी किस्म का बॉडली हार्म भी दे सकता है। मतलब देखा है हमने आजकल दिखाते हैं, मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दी थी, लाइक फॉर एग्जाम्पल न्यूज में दिखाया था कि लड़की थी, वो दिखने में बहुत प्यारी थी, तो वहाँ पे एक लड़के ने क्या करा कि उसके ऊपर जो एसिड फेंक दिया। तो यहाँ पे न्यूज में देखा होगा ये। सो ये क्या होता है, ये जो है वो जेलसी होती है कि वो इतनी ज्यादा दिखने में अच्छी थी कि वो जेलसी फील में आकर उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसकी ब्यूटी को क्या कर दिया, खराब कर दिया। और क्या कह रही कि जो जेलस पर्सन होते हैं ना, वो लोग कभी भी जो है ना, मतलब जब भी सब चीजें करते हैं तो उनको कभी भी अफसोस नहीं होता इस बात का। सही है। वो लोग कभी भी ये नहीं सोचते कि ना उनको बुरा लग रहा हो, बल्कि क्या होता है वो लोग हमेशा बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सही है। यानी कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग किसी भी किस्म का मतलब लिखा हुआ है कि दे कैन प्रैक्टिस क्रूअल्टी, दे कैन ह्यूमिलेट देम, दे कैन इवन मर्डर देम एंड देन फील हैप्पी अबाउट इट। सी वो लोग जब कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं उसके बाद क्या करते हैं, उनको जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी होती है इस चीज़ की। And even if actual harm is not done, even if envy and malice have not been harbored in the heart, all his good deeds are destroyed. उसके बाद हमने क्या पढ़ा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान किसी के साथ असली में बुरा नहीं भी कर रहा, सही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिल में किसी के लिए हम लोग बुरा कुछ सोचते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारी जितनी भी गुड डीड्स होती है ना, वो क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, जल जाती हैं। सही है। फिर मैंने आप लोगों को एक हदीस बताई थी हज़रत अबू हुरैरा की, Avoid the disease of jealousy and it converts good deeds just as fire devours wood। सही है। इस जो हदीस है इसके मतलब क्या है, ये मुझे सनान बताएंगे। जी सनान। Teacher, it means that we should avoid the disease of jealousy because it destroys our good deeds, such as fire destroys the wood. कैन यू एक्सप्लेन इट, मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं आप क्या मतलब है इसका? Meaning that that our deeds are burned like the wood is burned with fire. Exactly. क्या मतलब इसके कि our good deeds are destroyed, are burned just as the fire की वजह से जिस तरह से लकड़ियाँ जल जाती है ना, उस तरह से क्या होता है, jealousy की वजह से हमारी good deeds जल जाती हैं। Envy endangers our religion and faith, as Holy Prophet ﷺ says। तो ये कह रहे हैं envy करना, मतलब किसी से jealousy feel करना, क्या कह रहे हैं, क्या होता है कि हमारे religion और हमारे faith को क्या करता है, खराब करना start कर देता है। Why? The disease of envy and malice is one which shaves off not the person's hair but his religious beliefs and faith। से क्या कह रहे हैं कि क्या होता है कि जो डिजीज है ना, जो एनवी करने का, किसी से जब जेलेसी फील करने का, या मैलिस करने का। मैलिस क्या होता है, मैलिस जो टाइप ऑफ जेलेसी है। सही है। क्या होता है इसके अंदर हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं इस पैराग्राफ के बाद। तो क्या कह रहे हैं इसमें क्या होता है कि पर्सन जो है वो उस पर्सन की शेव ऑफ हो जाती है चीज़। सही है। कह रहे हैं क्या शेव ऑफ होती है, हेयर शेव ऑफ नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं कि उसके जो रिलीजियस बिलीव्स होते हैं, उसके जो फेथ होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो शेव ऑफ हो जाते हैं। वाई? क्योंकि आप लोग को पता है ना, अल्लाह ताला क्या कहते हैं, अल्लाह ताला हमेशा ये कहते हैं कि एक मुसलमान क्या करेगा, हमेशा अल्लाह ताला की सारी बातें मानेगा। सही है ना। अगर हम लोग अल्लाह ताला की बातें, बताए हुए बातों को नहीं फॉलो कर रहे, अगर हम लोग उसके अलावा भी किसी इंसान को ज़बरदस्ती हर्ट कर रहे हैं, हम लोग किसी इंसान के साथ बुरा कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा रिलीजन खराब हो रहा है ना। क्या हम लोग अपने आप को एक ट्रू मुस्लिम कह सकते हैं उसके बाद? नहीं कह सकते। मिस, कह रहे आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। ओके बेटा, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत ज़ोर से बोलूँ। सही है। और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं थोड़ा सा और ज़ोर से बोल दूँ। सही है। इसके बाद अब माइक ना मैं इसके और करीब नहीं जा सकती अपने मुंह के। सही है। तो क्या कह रहे हैं
कि क्या होगा कि इसकी वजह से क्या होता है कि जब भी कोई बंदा जेलसी फील कर रहा होता है ना, तो उसके क्या होता है कि उसके जो रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं और जिसके फेथ्स होते हैं ना, वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। सही है, ऑटोमेटिकली ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या करते हैं, अल्लाह ताला की टीचिंग से दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं। सही है ना। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी तक हमने जेलेसी के बारे में पढ़ा था। सही है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैलिस। चैप्टर का नेम क्या है, मैलिस एंड जेलेसी। तो जेलेसी तो हमने पढ़ ली कि जेलेसी क्या होती है, जेलेसी में एक इंसान क्या करने के लिए तैयार हो जाता है, जेलेसी की मीनिंग क्या है, जो पर्सन जेलस होता है उसको हम क्या कहते हैं, ये सब चीजें तो हम पढ़ चुके हैं। नाउ वी टॉक अबाउट मैलिस। मैलिस इज अ टाइप ऑफ जेलेसी। मैलिस क्या है, एक जेलेसी की क्या है, एक टाइप है। इट एक्चुअली मीन्स हेटेड। इसका क्या मतलब होता है, मैलिस की मीनिंग होता है हेटेड, मतलब किसी भी इंसान से क्या करना, हेट करना। When a person is jealous, it is because the person he envies has some blessing from the elder and mighty. सही है, क्या कह रहे हैं कि अगर एक पर्सन फॉर एग्जाम्पल जेलस फील कर रहा होता है ना, तो वो क्यों जेलस कर रहा होता है, क्योंकि वो जिस पर्सन का एनवी कर रहा होता है, यानी कि जिस पर्सन से वो जेलसी फील कर रहा होता है ना, कह रहा उसके पास कोई ना कोई अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है। सही है ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मैं जो हूँ, जैसे किसी भी किस्म की जेलसी, हम किसी से जेलसी फील कर रहे हैं। सही है, फॉर एग्जाम्पल मैं राफे से जेलसी फील कर रही हूँ कि राफे के पास एक बहुत अच्छा पैन है और मेरे पास वाला पैन नहीं है। सही है ना। तो क्या होगा कि मैं जो वो सिर्फ जेलस फील करूंगी, क्यों, क्योंकि राफे के पास अल्लाह ताला की ये ब्लेसिंग है कि उसके पास इतना अच्छा पैन है, लेकिन मेरे पास ये नहीं है। सही है, लेकिन मैलिस में ऐसा नहीं होता। मैलिस में क्या होता है, बट इफ अ पर्सन न्यूचर्स हेट्रेड एंड बेयर्स एनविटी फॉर नो रीजन, इट इज मैलिस। सही है, लेकिन क्या करेगा, अगर एक पर्सन हमेशा बुरा ही सोचे, एक इंसान अगर, एक पर्सन अगर हमेशा किसी से नफरत ही करना शुरू कर दे। सही है, न्यूचर्स हेटेड के मतलब है हमेशा ही अपने जहन में उसके बारे में बुरी चीजें सोचना शुरू कर दे। एंड बियर्स एनमिटी, फीलिंग ऑफ एक्टिव, या लिखा हुआ है क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट। सही, यानी कि क्या करेंगे, हमेशा ही उसके बारे में क्या करना शुरू कर दे, अपने दिल में जो है वो गलत गलत बातें सोच के बैठ जाए उसके बारे में, उसके बारे में हमेशा अपोजिट ही सोचे। तो क्या कह रहे हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, मैलिस कहते हैं। सही है, यानी कि मैलिस के अंदर क्या होता है, मैलिस के अंदर एक पर्सन ना किसी भी किस्म का कोई रीजन नहीं चाहिए होता उसे। सही है, वो क्या करता है, बस उस इंसान से क्या करना शुरू कर देता है, खुद ही नफरत करना स्टार्ट कर देता है। कोई भी वो काम कर दे, भले से वो अच्छा काम कर रहा होगा, भले से वो बुरा काम कर रहा होगा, क्या कह रहे हैं कि उसके लिए दिल में क्या लेके बैठ जाते हैं, बुराइयां लेके बैठ जाते हैं। सही है। अगर कोई पर्सन जेलसी फील कर रहा होगा, आप अगर आपसे पूछे कि डिफरेंस क्या है जेलसी के अंदर मैलिस के अंदर, तो हम लोग क्या कहेंगे कि जेलसी के अंदर तो ये होता है ना कि अगर फॉर एग्जाम्पल सामने वाले के पास कोई चीज है, हमें वो चाहिए, तो हम लोग जेलस फील करेंगे। सही है, लेकिन मैलिस के अंदर ये नहीं होता। मैलिस के अंदर भले से सामने वाले के पास कुछ भी नहीं है, बट स्टिल हमें क्या होगा, हमें वो फजूल में बुरा लगने लग जाता है। वी आर जस्ट वी जस्ट हेट हिम फॉर नो रीजन, और हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें दिल में क्या लेके बैठ जाते हैं, बुराइयां लेके बैठ जाते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड मैलिस। Detesting a fellow human being for no reason and bearing enmity in behavior is not appropriate for true Muslim. और ये कह रहे हैं कि हम किसी पर्सन को डिटेस्ट करें। डिटेस्ट करने का मतलब होता है हेट करना। तो क्या कह रहे हैं कि हम किसी पर्सन को डिटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग फालतू में उसको हेट कर रहे हैं। सही है, और कोई रीजन भी नहीं है इसके पीछे में। सही है, हम लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं, दिल में एनमिटी कर रहे हैं, अपने दिल में जो है वो उसके लिए जो है वो बुरी चीजें, उसके लिए अपोजिशन, उसके लिए गलत ख्यालात रख रहे हैं अपने दिल में। तो क्या कह रहे हैं, ये जो है वो एक अच्छा बिहेवियर, ये ट्रू मुस्लिम का बिहेवियर ऐसे नहीं होता। सही है, मूविंग टूवर्ड्स पेज नंबर 2, दिस इज द लास्ट पैराग्राफ। Okay, this is the last paragraph. Let's talk about this now. Okay, everyone, now we are going to start with the last topic. और सात बच्चों आपसे पेज नंबर पूछ रहे हैं बेटा, पेज नंबर जो 38 पे आ गए हम लोग। सही है, और जिन जिन बच्चों का टेस्ट अच्छा नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, वो लोग दोबारा से टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, इट डजंट मैटर। सही है, ये फर्स्ट टेस्ट था, अभी आप लोग के पास बहुत चांसेस आएंगे टेस्ट के। नाउ, एज अ प्रोफेसर सल्लम said,
When you hate someone, do for the sake of Allah. से Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या कहा है कि अगर हम लोग किसी से हेट करना चाहते हैं ना, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सिर्फ अल्लाह ताला की सेक के लिए करना चाहिए. इससे क्या मुराद है कि देयर आर सम पीपल, कुछ इस तरह के लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि हम लोग उनसे हेट कर सकते हैं. सही है, तो हमें सिर्फ उन्हीं से हेट करना अलाउ, उनके अलावा हम लोग किसी भी पर्सन से हेट नहीं कर सकते. यानी कि कौन है, इन अदर वर्ड्स इट इज परमिसिबल टू हेट ओनली दोज हु आर डिसलाइक बाय अल्लाह द अलमाइटी. इट इज अ हदीस नबी नेटेड बाय द हज़रत अबू हुरैरा. सही है, क्या कहने इसका अलग वर्ड्स में क्या है कि जिन लोगों से अल्लाह ताला ने हमें कहा है ना कि हम उन्हें डिसलाइक करना चाहिए, हम सिर्फ उन्हीं से हेट कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल शैतान, अल्लाह ताला ने हमें कहा है ना कि हमें शैतान को पसंद नहीं करना चाहिए. सही है, हमें उसकी किसी भी किस्म के पाथ पे नहीं जाना चाहिए, हमें उसकी किसी भी किस्म की टीचिंग्स फॉलो नहीं करना चाहिए. तो इसका क्या मतलब है कि वी आर अलाउड टू हेट शैतान. हम लोग शैतान को क्या कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, हम लोग शैतान को हेट कर सकते हैं. सही है, तो ऐसा कोई भी पर्सन, ऐसा कोई भी इंसान जिसको अगर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम लोग हेट कर सकते हैं, तो हम लोग उस इंसान को हेट कर सकते हैं. सही है, लेकिन खुद से हम लोग किसी भी इंसान को हेट नहीं कर सकते. सही है, हज़रत अबू हुरैरा की जो हदीस है, Twice a week on Monday and Thursday, people deeds are presented and forgiveness is granted. सही है, क्या कह रहे हैं कि हफ्ते के अंदर 2 दिन इस तरह के होते हैं, ट्वाइस अ वीक. सही है, लाइक 2 times a week क्या होते हैं, मंडे और थर्सडे को हमारी जितनी भी डीड्स होती हैं, ऑल ऑफ आवर गुड डीड्स से कहते हैं हम, हमारी नेकियों को. सही है, अगर फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर यूजिंग द वर्ड गुड डीड्स, उसका क्या मतलब है, नेकियां. इफ यू आर यूजिंग द वर्ड बैड डीड्स, उसका क्या मतलब है, हमारी बुराइयां. सही है, तो क्या कह रहे हैं कि पीपल की जो डीड्स होती हैं, यानी कि गुड और बैड डीड्स दोनों क्या होती हैं, दोनों अल्लाह ताला के पास प्रेजेंट की जाती हैं, और क्या होता है कि हमें फॉरगिवनेस मिल जाती है. सही है, जब भी अल्लाह ताला कहते हैं कि हमेशा मुसलमानों को अपनी जो है वो हर फ्राइडे को हमें जो है वो अपनी जो फ्राइडे की प्रेयर्स क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्राइडे को क्या होते हैं कि अगर आप लोग किसी भी किस्म की तरफ से अपनी हम लोग दुआ मांगते हैं, हम लोग अल्लाह से कहते हैं कि हमें फॉरगिवनेस कर दें, तो मंडे को जब हमारी डीड्स अल्लाह ताला के पास जाती है, तो क्या होता है, वो फॉरगिव हो जाती हैं. ठीक है, एक्सेप्ट फॉर 2 टाइप्स ऑफ पीपल, सिर्फ 2 लोग इस तरह के होते हैं जिनकी जो है वो बुरी डीड जो है वो फॉरगिव नहीं हो सकती. दोज हु हैव मैलिस एंड नॉरिश एनमिटी. एक कौन है, एक वो है जो कि जो है वो मैलिस करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, दिल में क्या करते हैं, दूसरे लोगों के लिए बुराइयां रखते हैं, दिल में दूसरे लोगों के लिए हेट रखते हैं. सही है, इट इज अ कमांड दैट फॉरगिवनेस शुड नॉट बी एंटर्ड इनटू देयर अकाउंट्स टिल सच टाइम एज दे रीअनाउंस दीज डेंजरस फीलिंग्स एंड प्योरीफाई देयर हार्ट्स. और अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि 2 तरह के लोग हैं, कौन कौन, एक तो वो लोग जो कि मैलिस होते हैं या जेलसी फील करते हैं, दूसरे कौन, जो कि दूसरे लोगों के लिए दिल में बुराई लेके बैठते हैं. तो अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि इस तरह के लोगों को क्या मिलेगा, कभी भी जो है वो फॉरगिवनेस नहीं मिलेगी. कब तक नहीं मिलेगी, जब तक वो लोग जो है वो अल्लाह ताला से अपनी दिल में जो बुराई है इनको ख़त्म नहीं करते, और अपने दिलों को दोबारा से क्या नहीं कर लेते, प्योरीफाई नहीं कर लेते. सही है, तो क्या कह रही है कि वी शुड अवॉइड मैलिस एंड जेलसी टू सेव अवर फेथ. कह रहे हैं इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, मैलिस और जेलसी को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ताकि हमारा फेथ क्या रहे, सेफ रहे. यहाँ तक कोई मसला है चैप्टर में, इज देयर एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग चैप्टर मैलिस एंड जेलसी? कोई ऐसी चीज जो कि समझ में ना आई हो, सो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क मी. Okay, you can unmute yourself and ask me. Hurry up. No, miss. You can just ask me. I think the chapter was very clear. It was very easy. And if you have no problems, then we are moving towards the copywork. Do you have any problem? मिस आपकी आवाज क्लियर नहीं है, कौन मुझसे पूछ रही है? Yes, Anaya beta, my voice is very clear. I think I'm talking very loudly. Can you all hear me? ठीक आ रही है. Exactly. Yes, I'm miss, we can hear you. Yes, teacher, your voice is clear. ओके बेटा, ये थोड़ी सी जो इश्यूज है ना, ये हम लोग ऑनलाइन स्टडीज में हमेशा फेस करेंगे. सही है, सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. ओके, तो अब सब आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो टेक आउट योर कॉपीज अच्छे बच्चों की तरह. जल्दी से अपने कॉपीज निकाले, लोग पहले सिलेबस लिख रहे हैं. सही है, सिलेबस लिखने के बाद जो है वो हम लोग जल्दी जल्दी जो है वो काम आगे बढ़ेंगे. जल्दी हरी अप. मिस हाफिज जबरदस्त. ओके, आप सबने अपनी कॉपीज निकाल दी, सबने अपने पेंसिल्स और पेन निकाल लिए, सब कुछ निकाल दिया, अपने ब्लू पॉइंटर ब्लैक पॉइंटर. सही है, अगर आप लोग रेडी हैं तो मुझे थम्स अप दे दीजिएगा, तो मैं सिलेबस लिखवाना स्टार्ट करवा दूँ. सही है, स्टिल आप लोग का सिलेबस जो है इस्लामिक का बिल्कुल भी लंबा नहीं है. सही है, सो आई डोंट थिंक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी लिखने में. जस्ट गिव मी अ थम्स अप व्हेन यू आर रेडी सो वी कैन स्टार्ट विद द कॉपी वर्क.
मेरे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मिस बताएं। सब सिलेबस तो दिखा दे। बेटा मैं लिखवा रही हूँ, आप लोग थम्स अप तो दे मुझे कि आप लोग सब रेडी हैं। ओके सही है। अब अगर कोई रेडी नहीं भी है तो आई एम गोइंग टू जस्ट स्टार्ट विद इट। सही है। नाउ सिलेबस के अंदर क्या है आपका? चैप्टर नंबर 1 है सिलेबस के अंदर, उसका नाम क्या है? मेलिस एंड जेलेसी। सही है। और हमारा जो फॉल टाइम है उसके अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर है, मेलिस एंड जेलेसी। बस टीचर। बस टीचर। सही है। क्यों एक चैप्टर है? तो 2 कुछ है। इसलिए एक चैप्टर है क्योंकि आप लोग का इस्लामिक का पूरे वीक के अंदर एक ही ब्लॉक होता है। सही है। और वो भी हमें सिर्फ ऑनलाइन आधे घंटे का छोटा सा ब्लॉक मिल रहा है। तो अगर हम लोग 2 चैप्टर रखेंगे तो हम लोग कॉपी वर्क हम लोग बाकी का दूसरा चैप्टर कब खत्म करेंगे? सही है। सो ऑटोमेटिकली हमें जो है वो टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा कम है। और आप लोग को याद है लास्ट टाइम जब हम लोग एयर 5 में थे तो हमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी के ब्लॉक यूज़ करना पड़ते थे इस्लामिक का कोर्स कंप्लीट करने के लिए। याद है आप लोगों को? यस मिस। सही है। तो यस मिस। ऑटोमेटिकली आप लोग ये मत समझो कि इस्लामिक का कोर्स कम है, इसलिए क्योंकि आप लोग का आधा इस्लामिक तो ऑलरेडी नाजरा के अंदर डिवाइड हुआ है। सही है। सो दिस इज जस्ट स्कूल की टाइमिंग क्या होगी? स्कूल कितने तक पहुंचना? ग्रुप ए और बी असाइनमेंट वगैरह? ग्रुप Yes. ए और बी में। बेटा आप लोगों को सब चीज़ें जो है वो बहुत जल्दी सब चीज़ें मिल जाएंगी। सही है। सिर्फ और सिर्फ बाकी बच्चों को मिल गए हैं, ग्रेड 5 तक बच्चों को चीज़ें पता चल गई हैं। आप लोगों को इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि आप लोगों को तो मंडे से स्कूल आना है ना, तो आप लोगों को प्रॉपर टाइम टेबल और हर चीज़ साथ में सेंड की जाएंगी। सही है। टीचर मंडे और ट्यूसडे? टीचर मंडे से आना है ट्यूसडे से आना है, ये समझ में नहीं आ रहा क्या है ट्यूसडे से आना है कोई क्या मंडे से आना है। शारजा आपको एक मैंने चीज भेजी थी ग्रुप में, उसमें साफ साफ 22 सितंबर लिखा हुआ है। एंड ट्यूसडे को हो रहा है। एग्जैक्टली ट्यूसडे को होगा। तो इसी वजह से आप लोगों को मंडे को जो है वो सब चीजें टीचर मेरे पास एक तस्वीर आई थी कि जो है ना एक क्लास दोनों ग्रुप बैठे हुए होंगे। बेटा जब आप स्कूल आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। और वैसे आप लोगों को संडे को या मोस्ट प्रोबेबली मंडे को सारी डायरेक्शंस जो मैं ग्रुप में सेंड कर दूँ। टीचर क्या मंडे को ऑनलाइन क्लास होगी? इससे ज़्यादा अच्छा हुआ आपने सनान बहुत अच्छा सवाल किया है कि मंडे को जब आप लोग की ऑनलाइन क्लास नहीं होगी। सही है। मंडे को आपकी कोई भी क्लास नहीं होगी, लेकिन मंडे को हमारा ज्योग्राफी का क्विज होगा। सही है। क्योंकि आपकी कोई क्लास नहीं हो रही तो आप लोग फ्री होंगे तो हम लोग ज्योग्राफी का प्लेट कितने बजे? नेटवर्क किया हमारा। टाइम 11 o'clock। मिस ओके टीचर। सही है मिस जी। मिस मेरे पास ना एक राजा कुमार की पूरी स्टोरी है, मैं आपको भेजूंगा, आप देखिएगा। मिस वो बहुत अच्छी है। बिल्कुल मुझे बिल्कुल शेयर करना मेरे साथ। सही आई विल सी बता इट। दीजिए मंडे को क्या होगा? अपने जूम पे भी भेज देना यार प्लीज। ओके तो आप लोगों मिस मैं भी सिलेबस लिख लूं? पे नहीं जा सकती, मंडे को क्या होगा? ईमेल पे शायद सेंड कर सकता हूँ। ओके मिस सिलेबस में सिर्फ एक टॉपिक है ना, मेलिस एंड जेलस। नेट डिसेबल हो गया। टॉपिक है मैरिज एंड जेलसी। ओके क्लास आप लोगों तो को फिर मिस मैं लिख रहा हूँ। वो क्या होगा? मैं तो लिखवा चुकी हूँ। हम लोग कॉपी वर्क की तरफ मूव कर रहे हैं। हम साल जल्दी जल्दी लिखो सिलेबस। सही है। मंडे को क्या होगा? बेटा मैं आप लोगों को यही बताने वाली थी कि मंडे को जो आपकी क्लासेस नहीं होंगी क्योंकि मंडे को जो है वो आप लोगों की जो स्कूल जाना है टीचर्स को उनको आपकी क्लासेस अरेंज करनी है। सही है। हमें स्कूल जाना है, मैं आप लोगों के लिए सब चीज़ सेटिंग करनी है। सही है। आप लोगों का कबर्ड पूरा शिफ्ट हो रहा है। और इससे ज़्यादा ग्रेड 6 मुझे आप लोगों से बात पूछनी थी कि आप लोग पिक्चर भेजिएगा ग्रुप पे किस चीज़ की बेटा? क्लासेस की। क्लासेस की? No. You are going to see it yourself. Okay. Malice और jealousy spelling है MALICE malice और jealousy JEALOUSY। सही है। जिसको नहीं आ जिसके लिए आपको क्या बात शेयर करनी थी हमसे? जी बिल्कुल मैं आप लोगों से बात शेयर करने वाली थी कि मंडे को जब आपकी किसी भी किस्म की कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी। सही है। लेकिन मंडे को हमारा ज्योग्राफी का क्विज होगा चैप्टर प्लेट टेक्टोनिक्स का। सही है। कोई मसला किसी को? सही है। सिर्फ 11 o'clock सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स का क्विज होगा। सही है। 10 मिनट्स में आप लोग को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग आने में क्या मंडे को होगा? मंडे को होगा ज्योग्राफी का टेस्ट। ज्योग्राफी का टेस्ट होगा मंडे को 10 मिनट्स का होगा। सही है। और जो है वो आपका जो है इस्लामिक का टेस्ट भी होगा मंडे को मैलिस और जेलेसी में से। कोई मसला? सही है। दोनों में से सही है। नंबर 1 विच चैप्टर नंबर
बेटा ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 विच इज प्लेट टेक्टोनिक, सही है। दैट चैप्टर इज वेरी इजी, हम लोग उसका काम स्टार्ट कर चुके हैं। तो मंडे को जब आप लोग को मैं 2 टेस्ट लूंगी, सही है। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए कि आप लोग ये टेस्ट मंडे को देना चाह रहे हैं या आप लोग ये टेस्ट मुझे सैटरडे को देना चाह रहे हैं, कल देना चाह रहे हैं? मंडे 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 सही है, एग्जैक्टली मंडे सैटरडे 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 नहीं मंडे मंडे सैटरडे। एग्जैक्टली। तो हम लोग की टेस्ट कब ले रहे हैं? हम लोग की टेस्ट जो है वो मंडे को लेंगे सुबह 11 o'clock पर, सही है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग किसी भी रीजन से सुबह बिजी हुए, सही है, अगर आप लोग की क्लासेस तो वैसे है नहीं मंडे को, आप लोग सब पूरे दिन फ्री होंगे, सही है। तो अगर 11 o'clock पे आप लोग फॉर एग्जाम्पल बिजी है तो हम लोग शाम में कंडक्ट कर लेंगे, सही है, कोई मसला नहीं है। मैं आप लोग को मंडे ग्रुप को पे क्लासेस नहीं होंगी? नहीं, मंडे को क्लासेस नहीं होंगे, सही है। तो मैं आप लोगों को जो लिंक होगी चैट की वो मैं ग्रुप पर सेंड कर दूंगी, तो आप लोग अपना चैट वहाँ से टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई मसला होगा तो आप लोग क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं, सही है। मंडे को 11 बजे हम ऑनलाइन होंगे। एग्जैक्टली, मंडे को 11 बजे ऑनलाइन होंगे, आप लोग अपना टेस्ट देंगे और उसके बाद आप लोग मजे करेंगे, सही है। बेटा मैं आ जाऊंगा। मिस मैं भी going to be first task we are going to be doing is words in meaning. Okay, so take your copy, make a line, draw a line in the center of the page, सही है। एक तरफ words लिखिए, एक तरफ meaning लिखिए, और पर डेट डालिए प्रॉपर, सही है। और अपना पेज जो प्रिपेयर कर लीजिए, सही है। जो वर्ड्स मीनिंग के वर्ड्स है वो पेज नंबर 38 पे जो है आप लोगों को मिलेंगे, सही है। अपनी बुक्स निकालिए, पेज नंबर 38 पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी कीजिए क्योंकि हमें क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं अभी। You will find the words on page number 38 of Islamiyat. Okay, you will see a question that with the help of a dictionary, write the meanings of the following words in Urdu and in English. सही है, but we are only going to be writing them in English. सही है। Words कौन-कौन से? Envy, malice, hesitate, humiliate, destroy और purity. सही है, these are the words. I'm screen sharing them as well. सही है, so give me some time. ओके, जब तक आप लोग अपनी पेजेस बना लीजिए, बस टाइम नहीं है बिल्कुल भी। ये एनएमएलसी हेस्टेडी। yes, these are the words. And thank you so much for the picture, Rafil. Okay. Can you all see the words in meaning over here? Number one is envy. Number 2 is malice. Number 3 is hesitate. Number 4 is humiliate. Number 5 is destroy. And number 6 is purity. These are the words of words and meaning. Okay. And I'm going to be telling you meaning, but you, what you're going to do is that कि मैं चाह रही हूँ कि मैं आप लोगों को ये होमवर्क दे दूँ कि अगर आप लोग खुद से सर्च कर लें इनकी मीनिंग्स। कैन यू डू दैट? मिस मिस जी आमना। मिस हमें सिलेबस के बाद वर्ड्स मीनिंग लिखनी है ना? टाइटल पेज बनाना है पहले, देन वर्ड्स उसके मीनिंग। बाद टीचर पर सिलेबस लिखेंगे, बट वर्ड्स मीनिंग वर्ड्स मीनिंग करेंगे। नहीं, मैं ग्रुप पे कुछ भी नहीं भेजूंगी। आप लोग बिल्कुल भी कोई छोटे बच्चे नहीं है, सही है। मैंने स्क्रीन शेयर करे, आप लोग जल्दी जल्दी वर्ड्स लिख लीजिए। आपको सिर्फ 2 मिनट्स लगेंगे वर्ड्स लिखने में, सही है। जल्दी जल्दी ना। और दिखाओ कौन कह रहा है मिस कैसे। वेट मिस हम तो ठहरे सीधे साधे बच्चे, हमने स्क्रीनशॉट ले ली। मिस अली सलमान मिस जी, देखिए मिस हमने कहा था कि वो आप एप्लीकेशन के भेज दिया। मिस जब मैं अली सलमान एक्सीलेंट। मिस जी राफेल, आई एम लिसनिंग। जब मेरी बहन एप्लीकेशन लिख के गई तो आप स्कूल में नहीं थी मिस, तो मेरे मम्मा कहें जब मैं स्कूल आऊंगा मैं आपको दे दूंगा। मंडे आई विल बी गोइंग टू स्कूल ऑन मंडे, सही है मिस। Okay. Now, have all of you written the words? Have you? Okay. So what are going? Okay. सबने लिख नो मिस आई एम राइटिंग।
जल्दी करो अमसाल, तेज हाथ तेज से चलाओ। अमसाल, यू हैव योर बुक राइट? बुक है ना आपके पास? अमसाल बेटा आपका यस मिस। ओके, तो तुम अपनी बुक में से लिखो, जल्दी हाथ तेज चलाओ। सही है, ये क्वेश्चन यूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सो अब आप लोगों को क्या करना है कि वन बाय वन आप लोग कुछ वर्ड जो वर्ड्स हैं, सही है, हम लोग देखेंगे किसको किसकी मीनिंग पता है। सही है, इफ यू डू नो द मीनिंग जस्ट रेज योर हैंड। सही है, यू डोंट नीड टू शाउट एट द सेम टाइम। नंबर 1 इज एनवी। हु इज गोइंग टू टेल मी द मीनिंग ऑफ एनवी? यस सनान, कैन टेल मी द मीनिंग ऑफ एनवी? Miss, the meaning of envy is Mesud. मैसूद? नो नो Yes. नो नो, Book में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? Miss, first paragraph की आखिरी line. नो, Envy is all right. द मीनिंग ऑफ एनवी नहीं लिखा हुआ वहाँ पे। वहाँ पे लिखा हुआ है द पर्सन एनवीड। जिस पर्सन से हम लोग जेलसी फील कर रहे होते हैं उसको हम लोग महसूद कहते हैं। सही है, सो जो एनवी खुद क्या होती है, इसका क्या मतलब है? Teacher, यस, the desire to harm someone. desire to harm someone. Do you think that is called Miss, can I envy? tell? Yes, Alisha. Miss, the meaning of envy is that it's a type of a jealousy that a jealousy a person can hurt someone. बेटा ये तो हम लोग आगे टाइप पे जाते जा रहे हैं, सिर्फ एक सिंपल सा वर्ड है एनवी। यस फातिमा, लेकिन तुम बहुत करीब हो। Wish to feel jealous from someone. एग्जैक्टली, एनवी का क्या मतलब होता है? एनवी की मीनिंग है जेलेसी। एनवी की मीनिंग क्या है? जेलेसी। सही है, आप लोगों को पता था लेकिन आप लोग क्या कर रहे थे, वहीं वहीं घूम रहे थे उसी वर्ड के इर्द गिर्द। सही है, आप समझ में आया कि क्या कह रहे हैं कि इफ आई एम बीइंग एनवीड ऑफ समवन, तो उसका क्या मतलब है? मैं उस पर्सन से क्या हो रही हूँ? इफ फॉर एग्जांपल एग्जैक्टली, अगर मैं सेंटेंस यूज कर रही हूँ कि आई एम एनवीड ऑफ सनान, तो उसका क्या मतलब है? आई एम जेलस ऑफ सनान। You are jealous from Sunan. Exactly. So that is what the word envy means. Envy की क्या मतलब है? Jealousy. Okay. Number 2. Jealous. Number 2. Malice. Who's going to tell me the meaning of malice? Yes, Fatma. To harm someone. Exactly. Malice की meaning आप सब मुझे पहले ही बता चुके हैं। कैसे क्या meaning है? The desire to harm someone. किसी इंसान को ऐसी मतलब कोई रीजन ना हो लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको जबरदस्ती उसको टीचर मैंने मैलिस की मीनिंग बता दी थी, एनवी। जी बिल्कुल सनान, सही है। मैलिस की मीनिंग क्या है? द डिजायर टू हार्म समवन। जब हमें कोई रीजन ना हो लेकिन फिर भी हम किसी इंसान को हर्ट करना चाह रहे हो, Malice की meaning to harm someone है। द डिजायर टू हार्म समवन। Miss, malice की meaning to harm someone है। डिजायर टू हार्म समवन। DESIRE, desire to harm someone. Exactly. Miss, DESIRE desire ना? जी, DESIRE. Miss, Yes, Rafet? envy का मतलब is jealousy. जी, एनवी का मतलब है जेलेसी और मैलिस का मतलब क्या है? डिजायर टू हार्म समवन। Harm someone. डिजायर किसे कहते हैं? और मुझे बताएगा डिजायर विल। एग्जैक्टली, डिजायर हम जिसे कहते हैं विल, यानी कि जब हमारा दिल चाह रहा होता है खुद ही से। सही है, तो यानी कि मैलिस। वालेकुम अस्सलाम रजा। बेटा रजा, हम लोग जो वर्ड्स मीनिंग कर रहे हैं, वर्ड्स मीनिंग पेज नंबर 38 के ऊपर है आपकी, तो जल्दी से अभी बुक निकाल के और पेंसिल लेके बैठ जाओ ताकि तुम मीनिंग लिख लो। सही है, और बाद में अपनी वर्ड्स मीनिंग फेयर कर लेना। Okay, I'm Miss hesitate का मतलब क्या है? ओके, ये तो मुझे जो है वो हेजिटेट का मतलब जो है वो अली सलमान बताते हुए दिख रहे हैं मुझे। नहीं? अच्छा, तो फिर इसका मतलब मुझे जो है वो कौन बता रहा है? मैं बताऊं? ओके अलीशा, कौन बता रहा? ओके अनाया। यस अनाया। टीचर घबराना। घबराना, और उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे हम? किसी चीज से हेजिटेट करना। मिस टीचर जैसे कि एलिफी है ना जी,
एनवी का जेलिसी है ना? एग्जैक्टली, एनवी का मतलब होते हैं जेलेसी। सही है रजा, तुम लिख लो अभी जल्दी मीनिंग्स। नंबर 1 मीनिंग है वर्ड है एनवी, एनवी का मीनिंग है जेलेसी। सही है। नंबर 2 है मैलिस, मैलिस की मीनिंग क्या होते हैं? डिजायर टू हार्म समवन। सही है, डिजायर टू हार्म समवन, सिर्फ हार्म समवन लिखेंगे तो गलत हो जाएगा वो। सही है, हार्म समवन नहीं, लेकिन डिजायर मतलब दिल चाहता है हार्म करने का। ओके ओके रजा, आर यू डन? We are moving towards words number 3. Yes, number 3. Number 3 is hesitate. Hesitate का मतलब होता है कि कोई काम करने वाले हो ना, तो हम क्या करें, उस काम से रुकें। सही है, मतलब हम लोग सोच रहे हो कि अब ये काम करें या हम ये काम ना करें। ओके, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड हेजिटेट। से इसका क्या मतलब है? टू पॉज बिफोर यू डू समथिंग। टू पॉज बिफोर यू डू समथिंग, कोई भी काम करने से पहले हम लोग रुक जाए। हम लोग जब हेजिटेट कर रहे होते हैं, मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल कि आई वाज हेजिटेटिंग, आप लोग कहते हैं ना कि मैं हम वी वर हेजिटेटिंग कि लोग मुझसे बात पूछें हम लोग ना पूछें। सही है, तो इस वर्ड को हम टू यूज पॉज करेंगे बिफोर यू डू समथिंग। Yes, Taja, I'm going towards number 4. सही है, I'm repeating all 3. Number 1 is envy, envy meaning is jealousy. Number 2 is malice, malice की meaning क्या है? The desire to harm someone. Number 3 is hesitate, to pause before you do something. सही है, these were the 3 words. We are moving towards number 4, humiliate. कौन मुझे बताएगा humiliate की? Yes, Taja, हम बता रही ह्यूमिलेट करने को क्या कहते हैं? टीचर यस, एम्बैरस करना। एग्जैक्टली, make some shameful. एग्जैक्टली। To make यस फातिमा, someone shameful. To humble someone. नो, हम्बल, हम्बल कहाँ से आएगा बेटा? हम्बल बिल्कुल भी नहीं आएगा इसके अंदर। क्या होगा इसकी मीनिंग, क्या होगी? make someone feel ashamed. एग्जैक्टली, सही है। तो इसकी मीनिंग में आप लोग क्या कर सकते हैं? सना ने बोला कि टू एम्बैरस समवन। सही है सना, तुम्हारी बिल्कुल सही है। राफत, तुमने बोला है कि टू मेक समवन फील अशेम्ड, ये बिल्कुल सही है। सही है, तो ये दोनों डेफिनेशन सेम है। टू एम्बैरस समवन या टू मेक समवन फील अशेम्ड, दोनों की मीनिंग क्या है? सेम है कि हम लोग किसी को जबरदस्ती क्या करें, उसको नीचे दिखाएं, उसको हम लोग चाहे वो बुरा फील करवाएं। सही है, वापस से मैंने बता दे हेलमेट की ह्यूमिलिएट। सही है, ह्यूमिलिएट की क्या होगा? टू एम्बैरस समवन, टू एम्बैरस समवन, EMBARRASS, EMBARRASS। सही है, टू एम्बैरस समवन या पे टू मेक देम फील अशेम्ड। आपकी मर्जी, आपको जो लिखना है आपको लिख सकते हैं। क्या सबने? Yes. ओके, टीचर डिस्ट्रॉय का क्या मैं बता दूं? यस मिस बिल्कुल अनाया, बिल्कुल आप By बता रहे हैं आप। damage or attacking him. By damage him or attacking him. नहीं देखो, अगर तुम कह रही हो डैमेजिंग या अटैक करना, तो उसको तो हम लोग अटैक में ही मीनिंग में जाएंगे ना। अगर मैं कहूँ किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर दें, तो डिस्ट्रॉय करने के हमारे जहन में क्या आते हैं? कि उस चीज को हम लोग बिल्कुल खत्म कर दें। Can I tell? ये होता है ना, हम लोग टू वैनिश समथिंग मिस टू वैनिश समथिंग टू वैनिश समथिंग वैनिश समथिंग। वैनिश करने का तो मतलब ये कि तुम उसको गायब कर दो। हम लोग मैजिशियंस तो नहीं है। यस यस यस, यू कैन टेल मी, जिसको भी पता है वो मुझे बता सकता है। मिस टू फिनिश समथिंग फिनिश करने का मतलब हमारा कोई टास्क है वो। Teacher ruin. And something. Yes, destroy means. Teacher ruin something. यस फातिमा, To end something. एग्जैक्टली क्या होगा? टू एंड समथिंग, किसी चीज की बिल्कुल उसको एंड कर देना है। टू एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, कि हम किसी चीज की बिल्कुल जो एग्जिस्ट कर रहा है उसी चीज को बिल्कुल खत्म कर दें। सही है, तो डिस्ट्रॉय क्या होगा? एंड, टू एंड समथिंग या टू एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, जो भी आपका दिल करे। और एंड AND वाला एंड नहीं होगा, बल्कि END वाला एंड होगा। सही है, फाइव का फिर से बता दे मीनिंग। डिस्ट्रॉय, किस चीज को डिस्ट्रॉय करना, उसको बिल्कुल खत्म कर देना। जो क्या होगा? टू एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग या टू एंड समथिंग, जो आपको सही लगे। मिस प्योरिटी की मीनिंग
वेट हमसाल, सबको पहले 5 करने दें। Yes, have you done number 5? Okay. Yes. Moving towards number 6, that is purity. प्योर से क्या मुराद होता है? प्योर से मुराद होता है कि ऐसा इंसान जो कि क्या है, बिल्कुल Good deed. Purity of drinking. साफ क्लीन अच्छा। एग्जैक्टली जो कि प्योर से मुराद होता है जो कि बिल्कुल क्लीन हो, बिल्कुल नाइस हो, सही है। सो प्योरिटी क्या होता है? प्योरिटी तो एक जो है वो क्वालिटी हो गई। Miss, good deeds. नो, मिस प्योरिटी मतलब सफाई। उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे अब आप? Cleanliness. Cleanliness. क्लीननेस, प्योरिटी का मतलब क्लीननेस। अच्छा, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूंगी कभी क्लीननेस, तो आप मुझे बोलेंगे कि इसको प्योर बोलते हैं हम। क्लीननेस को तो हम सफाई को बोलते हैं, हम तो क्लीननेस तो सही है। तो प्योरिटी के मतलब क्या होते हैं? क्लैरिटी, CLARITY, क्लैरिटी, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि क्या करता है, हर चीज के अंदर बिल्कुल फेयर होता है, सही है, वो एकदम क्लियर होता है, तो जैसा होता है वैसे ही फील करता है, सही है। तो प्योरिटी का क्या होगा? क्लैरिटी, CLARITY, मिस डन। CLARITY। ओके रजा, लिख लिया? सही है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जल्दी से हेडिंग डालिए क्वेश्चन एंड आंसर्स की, जल्दी जल्दी। ये देखा सही है। फिलहाल जो है वो थोड़ा सा बिल्कुल जबरदस्त अली, वैसे अली तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स का टाइटल पेज बनाने की जरूरत नहीं थी, तुम ऊपर भी लिख सकते थे, सही है। बट सही है, एग्जैक्टली। आप लोग क्वेश्चन आंसर्स या वर्ड्स मीनिंग आप लोग अपने जो आपकी ऊपर हेडिंग वाली लाइन होती है ना, वहीं पे लिख लीजिए। टाइटल पेजेस तो सिर्फ चैप्टर्स के बनाएंगे हम लोग, सही है। ओके, तो जो आप लोग फर्स्ट के 3 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हो आपकी बुक के अंदर है, आप लोग बुक चेक करिए अपनी बुक में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, Page number 38. पेज नंबर 38 पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लिखा हुआ है व्हाट इज जेलसी, व्हाट डज अ जेलस पर्सन ट्राइज टू डू। कौन मुझे बताएगा इसका आंसर? Yes, can I? ओके, यस सनन, गो अहेड। Jealousy is a negative emotion. Jealousy is a negative emotion because of it the person wants attention and envies another person well. Fame, good reputation, high position, good job or beauty. एग्जैक्टली, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है वो जेलसी इज अ नेगेटिव इमोशन से इस लेके पहले पैराग्राफ में एग्जैक्टली फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट और सेकंड हेडिंग है, सही है इसका आंसर। Miss, I have not book. ओके, हम लोग तो तुम जो है वो खुद से लिख लो कि जेलसी इज अ नेगेटिव इमोशन। अच्छा, मैं तुम्हें No, Miss, questions के लिए. जो है वो पिक्चर सेंड कर देती हूँ व्हाट्सएप पे, सही है। Okay. मैंने ग्रेड 6 के ग्रुप पे सेंड करा है, तो जिसके पास बुक्स नहीं है वो लोग क्वेश्चंस वहां से लिख लीजिए। Okay. ओके, सही है। तो नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है वो फर्स्ट लाइंस के अंदर है कि जेलसी इज अ नेगेटिव इमोशन एंड बिकॉज ऑफ इट अ पर्सन इज बर्न्ड विद हिमसेल्फ एंड एनवीज अनदर पर्सनस वेल्थ, फेम, गुड रेपुटेशन, हाई पोजीशन, गुड जॉब और ब्यूटी, सही है। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। Question ये what is jealousy? What does the jealous person Yes, try yes, to yes. Question number 2. Write down the hadith of Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam regarding the jealousy. सही है। तो Holy Prophet Prophet said envy endangers our religion and faith as the hadith of Prophet says. Exactly. तो Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam की हदीस क्या है? जो सेकंड वाली हदीस है, कौन सी? The disease of envy and malice is one which shaves off not a person's hair but his religious beliefs and faith. सही है। इसका आंसर ये है, ये वाली हदीस है, सही है। दैट इज सेकंड। मिल गई सबको? पहले का आंसर क्लियर था? पहले वाले का पहले पैराग्राफ की फर्स्ट से सेकंड लाइन तक है। ओके, आप लोग सिर्फ पेंसिल से मार्क कर लीजिए। आप लोग चाहें तो आप लोग बाद में फेयर कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग अभी भी फेयर कर सकते हैं। मिस तीनों सवाल लिखने जो बुक में है। बिल्कुल, तीनों सवाल लिखना है।
मिस यस इस आखिरी क्वेश्चन का लास्ट पैराग्राफ है। Yes. What did Prophet Muhammad say about the person who nourish enmity and malice? सही कह रहे हैं कि Prophet Muhammad ने या अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि कोई इंसान अगर जो है वो अपने दिलों में बुराइयां रख के बैठेगा तो उसके बारे में क्या कहा है? उसके बारे में क्या कहा है उन्होंने ये कहा है if a person nourishes hatred and enmity for no reason, सही उन्होंने क्या कहा, इट इज मैलिस, यानी कि आप लोग कहाँ से लिख सकते हैं, आप लोग आंसर लिखेंगे कि डिटेस्टिंग अ फेलो ह्यूमन बीइंग फॉर नो रीजन एंड बेयरिंग एनमिटी इन बिटवीन हिज बिहेवियर इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर ट्रू मुस्लिम। तो इसका आंसर कहाँ से होगा, डिटेस्टिंग से। वेयर इट इज फर्स्ट पेज के लास्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 37 का लास्ट पैराग्राफ देखें, लिखा हुआ है डिटेस्टिंग अ फेलो ह्यूमन बीइंग फॉर नो रीजन एंड बेयरिंग एनमिटी इन बिहेवियर इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर अ ट्रू मुस्लिम। क्या कहा प्रोफेसर सल्लम ने कि एक बंदा जो कि अपने दिल में सिर्फ बुराइयां रख के बैठेगा किसी के लिए तो वो ट्रू मुस्लिम नहीं है। मिल गया सनान? पेज नंबर 37 का लास्ट पैराग्राफ है, उसकी थर्ड लाइन में देखो द टेस्टिंग लिखा होगा। थर्ड लाइन की आखिरी जगह। एग्जैक्टली सही है, तो यही लिखना है टीचर, द टेस्टिंग से लेके ट्रू मुस्लिम तक लिखना है। ओके ओके नाउ इसके इन अरबिक ARABIC, अली सलमान अभी लिख लो, बाद में मैं नहीं बताऊंगी, पहले बता रही हूँ मैं। इन अरबिक ARABIC, इन अरबिक में से स्पेलिंग आती है अरबिक। व्हाट डू वी कॉल्ड, सही है, we call, आई एम रिपीटिंग, what do we in call, Arabic what do we call a person who is jealous, a person who is jealous and who is Jealous envied, and envied। exactly। में से क्वेश्चन कहाँ लिखा हुआ है? ये क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, जब भी मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार, सही है। in Arabic what do we call a person who is jealous and envied, लिख लिया सबने? Yes, सही है ना? In Arabic, what do we call the person who is jealous? And envied, and envied, 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 सही है। Who is jealous के बाद and AND, and लिखना है पहले और फिर envied, यानी कि अरबिक के अंदर जो भी पर्सन जेलस हो रहा होता है ना और जिससे जेलस हो रहा होता है, हम उन दोनों को क्या कहते हैं अरबिक के अंदर, इसका ये मतलब है, सही है। तो आप लोग इसका आंसर लिखेंगे ENVIED, ये है ना मिस, ये है ना in Arabic what do we call the person who is jealous and angry? exactly, और इसका आंसर क्या होगा, in Arabic the one who is jealous is called, the one who is jealous has hasid, exactly, and the one being envied is called महसूद, सही है। तो आप लोग in Arabic what do we call a बेटा person use your who is own jealous words, and angry? use your own words, सही है। सिर्फ और सिर्फ बस हाथ से तो महसूद मत लिख देना, अपनी वर्डिंग यूज कर लो, सही है। कि फॉर एग्जांपल इन अरबिक जो जेलस पर्सन इज कॉल्ड हासिद और एनवीड पर्सन इज कॉल्ड महसूद, सही है, ये लिख लो। ये साफे वैस मेरी वीडियो में देखना, मैं देखना मैजिक ट्रिक दिखा रहा हूँ। अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है राफिज का। मंडे को दिखाना, मंडे को बिल्कुल मंडे को दिखाना, मंडे को टेस्ट है, मंडे को तुम लोग के लिए मैं बहुत फ्री होंगे, सही है। मैं आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 और दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ग्रुप पे सेंड करूंगी, और जो क्वेश्चन 1 to 3 है उसकी पिक्चर सेंड कर चुकी हूँ मैं, सही है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें क्या है, लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हदीस ऑफ हजरत अबू हुरैरा रिगार्डिंग जेलसी, व्हाट इज द हदीस ऑफ हजरत अबू हुरैरा रिगार्डिंग जेलसी। तो इनकी हदीस कौन सी है, वो वाली, अवॉइड द डिजीज ऑफ जेलसी एज इट कंबर्स गुड डीड्स जस्ट एज फायर डिवोर्स वुड, सही है, सबको मिल गया? ओके टीचर, ये ओवर हो गया, कोई बात नहीं,
टाइम ओवर हो गया, लेकिन क्योंकि आप मिस और क्लास नहीं है और आप लोग को खेलना ही है तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ लें, ठीक है। हमारे पास सिर्फ 6 मिनट्स रह गए वैसे भी मीटिंग ओवर होने में। मिस मिस जी हमारे वो वीडियो वाला आज होगा वापस? नहीं बेटा, यस बना ली। नहीं बेटा, उसके लिए मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। टीचर वो तो कंप्यूटर पे बन जाती है। नहीं, मुझे वीडियोस लेने के लिए, पिक्चर्स लेने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा। टीचर जी टीचर मिस आपने रिकॉर्डिंग तो खुद की थी ना अपने अपने लैपटॉप में? ग्रुप पर भेजिएगा जब आप वीडियो बनाएंगी। बिल्कुल। सबने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 5? तो मतलब मिस आज नहीं आना हमें। टीचर प्लीज रिपीट अगेन क्वेश्चन नंबर 5। What is the hadith? Sinan ने बताया what is the hadith of Hazrat Abu Hurairah regarding jealousy? सही है। ये दोनों क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने ग्रुप में सेंड कर दिए हैं, सही है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अवॉइड द डिजीज ऑफ जेलेसी एज इट कंबर्स गुड डीड जस्ट एज फायर डिवोर्स वुड। सही है, कोई मसला? तुम होस्ट हो। हाँ तुम होस्ट हो। आपने कर लिया? मगर मैं टीचर मुझे एक चीज पूछनी है। हाँ हाँ, पूछो पूछो। टीचर आप मुझे ये से समझा सकती हैं इस सही लाइन से? अवॉइड द डिजीज से मिस आप मुझे 1 2 3 क्वेश्चन टीचर भी भेज देंगी ना? क्योंकि टीचर मैंने यहाँ से तो सब पढ़ा है ऊपर से यहाँ तक इस पैराग्राफ तक, पर जब मेरी लाइट चली गई तो उसकी वजह से मैंने फिर क्लास ही नहीं ली आधी जब आपने शुरू की थी। तो तुम्हें इसके बाद से कुछ भी नहीं पता? सही, जब सब चले जाएंगे तो तुम क्लास ज्वाइन कर लेना। सही है, सही है। मिस ओके आमना बेटा, मैं क्वेश्चन 1 2 3 ग्रुप पे सेंड कर चुकी हूँ ओके और 4 5 भी कर चुकी हूँ। ओके सही है, अच्छा सही है। ये आप लोगों का काम सारा हो Yes. गया। सही है, अब आप लोगों को मैं एक असाइनमेंट दे रही हूँ। आप लोगों को असाइनमेंट कैसे करना है वो आप लोग याद है? आप लोग कंप्यूटर पेपर पे करते थे, याद है सबको? सब भूल गए? जी यार आपकी आवाज बहुत अटक रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि मेरा इंटरनेट बहुत ज्यादा अटक रहा है। वेरी सॉरी।